Okay, students. So today we are going to discuss miscellaneous part of trigonometric. In the trigonometric, we have done 3.1, 3.2, 3.3, and 3.4. So today we are going to discuss miscellaneous exercise. So first question. This is the example. First question. Prove that cos 2x cos x by 2 cos 3x into cos 9x by 2 equal to, we have to prove sine 5x into sine 5x by 2. So we will prove this one. So student, this is the left hand side part and this is the right hand side part. So I will take the left hand side part. So that will be cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2. So स्टूडेंट यहाँ पर जो 2x x by 2 और 3x 9x by 2 है, ये सेम एंगल नहीं है. ये cos a cos b माइनस sin a sin b नहीं है, ये अलग अलग है. यहाँ पे आपको जो अप्लाई करना पड़ेगा वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, that will be cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b. So but here we are not looking to, so divide by 2 and multiply by 2. This is cos 2x, 2 cos 2x and cos x by 2, and 2 multiply, so 2 also multiply in the second part, cos 9x by 2. So apply this formula in both the side, in both the part, first part and second part. So 2 cos a cos b, cos a plus b, so 2x plus x by 2 plus cos 2x minus x by 2 minus same thing here, cos a plus b, and plus, but here is minus, so when minus multiply, so plus will be negative. So cos 3x minus 9x by 2. So we are getting here cos 5x by 2 after simplify, and we are getting here 3x by 2, and we are getting cos 15x by 2, 15x by 2, and we are getting cos minus 3x by 2. You can see that by the calculation. So student, we also know that cos of minus x will be the cos x. तो माइनस साइन का cos पे और sec x पे कोई फर्क नहीं पड़ता. So यहाँ पे लिखा हुआ है cos of minus 3x by 2, तो ये cos 3x by 2 के इक्वल हो जाएगा. So you can write here minus cos 3x by 2. Okay, this will be same. So cos 3x by 2 cancel out by cos 3x by 2. So we are getting here like 1 by 2 cos 5x by 2 minus cos 15x by 2. So apply the formula cos c minus cos d. So I write the formula here, cos c minus cos d. So cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. This is the formula I have explained already. So apply here. So you will get the minus sign here, minus 2 sin 5x by 2 plus 15x by 2 by 2 into sin
5x by 2 minus 15x by 2 and divide by 2. So student, this is the concept. Okay, so I am removing this part for proving the result. Okay, so here we can write minus 1 by 2 into 2, that is sine 5x, 15 plus 5, 20x by 2, 20 by 2, 10, 10x by 2 is 5x, that is 5x after simplification. So this is sine, so 5x minus 15 minus 10, minus 10 by 2 minus 5x. So here is minus 5x. So we are getting here minus 10 by 2 minus 5x by 2. So we are getting minus 5x by 2. Okay, after simplified. So 2 cancel out. So now minus sine 5x into sine of minus theta. We know that sine of minus x or minus theta all are same. So this is minus sine x. So minus will be converted here. So minus plus. So you are getting sine 5x by 2 equal to right hand side. Equal to right hand side. So student, I prove this one. Okay, student. So next question, I am going to take 10 pi by 8. So what's the value of 10 pi by 8? Like 10 pi by 8. हमें pi by 4 की वैल्यू पता है, तो let a equal pi by 8. I suppose multiply by 2 on both sides. Why multiply by 2? Because we know that after multiplication it will be converted in the pi by 4. Taking 10 on both sides. Taking 10 मतलब tangent. Taking 10 on both sides. 10 मतलब 10 function. Okay. So this will be 10 of 2a and 10 pi by 4. So 10 of 2a, formula is 2 10a, 1 minus 10 square a. So 10 pi by 4 is 1. Cross multiplication, 1 minus 10 square a equal to 2 10a. This is 2 10 square a plus 2 10a minus 1 equal to 0. So this is quadratic equation, quadratic in 10a. So apply the formula. I think we all know that about this formula, ax square plus bx is equal to c. So x equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. So apply here. This is 10a equal to minus b. So b is minus 2. So sorry, b is 2 and b square, 2 square minus 4, a is 1 and c is minus 1. Divide by 2a, that is 2 into 1. So we are getting 10a equal to minus 2 plus minus, that is 4 minus minus plus, that is 2. So 8 divided by 2. So root 8 we can write 2 root 2 divide by 2. So divide by 2 in the numerator, in the denominator. So we are getting here plus minus root 2. So student, 10a, two values we are getting. But I know that a is the acute angle because pi by 8 is the acute angle. This is acute angle. So 10 pi by 8 should be positive because lies in the first quadrant, because acute should be positive value. So I will take only the positive sign only. Positive sign. We ignore the negative sign. So 10a मतलब 10 pi by 8 is equal to, हम लेंगे सिर्फ positive sign. So root 2 and ये वाला minus 1. So student, 10 pi by 8 value is root 2 minus 1.
ओके, tan पाई बाई 8 वैल्यू इज √2 - 1 एंड पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं 22 1/2 डिग्री, क्योंकि ये 45/2 है, 45/2 और पाई बाई 8 बोथ आर सेम थिंग. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे वी हैव सपोज 10x equal to 3/4 and x pi to 3π/2. So find the value, find sin x/2 cos x/2. Okay, we need to find these are values and tan x/2 and tan x/2. Listen to me carefully. The solution, tan x equal to 3/4. So student, we have tan x equal 3/4. Okay, tan x equal 3/4 and x value is pi to 3π/2. इसका मतलब है pi is this and this is 3π/2. So this is pi and this is 3π/2. It means x lie in the third quadrant. X lies in the third quadrant. So but we need to find the sin x/2. So first I check where x/2 lies. So divide by 2 on both sides. Divide by 2 on both sides. So we are getting pi/2 and we are getting 3π/4. Now I am checking. This is pi/2, 3π/4. So here is pi/2, here is 3π/4. Let us suppose this is 3π/4. This is pi/2, and let us suppose this angle is 3π/4. 3π/4. So this portion, so this portion is lie in the second quadrant. In the second quadrant. So pi/2 to 3π/4 वैल्यू मतलब 90 से लेके 135. इसको बोलते हैं 135, इसको बोलते हैं 90. तो 90 से लेके 135 कहाँ पे आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. तो इसका मतलब आपको sin x/2, cos x/2 और tan x/2 निकालना है, जिसमें x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो इसका मतलब एक बात तो श्योर हो गई कि sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है. x/2 आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में. सेकंड क्वाड्रेंट. ये बात तो श्योर हो गई कि साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा और टेन नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन. तो हमने एक इंट्रोडक्शन बना लिया. अब tan x इक्वल टू 3/4 है, तो इससे मैं फाइंड आउट कर सकता हूं sec x. तो 1 + tan² x इक्वल टू 3/4. सो आई कैन राइट tan² x, सॉरी just wait. तो ये होता है sec² x होता है, sec² x. तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1 + 3/4². So we are getting sec² x. So sec² x की वैल्यू हो गई 1 + 9/16. That is 16 + 9/16, and we are getting here 25/16. अब जब मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहां से आएगा प्लस माइनस √25/16. तो यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ±5/4. बट स्टूडेंट, एक्स की जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में sec x जो है नेगेटिव होता है. तो यहां से आप लेंगे नेगेटिव ओनली, क्योंकि जो sec x है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, पाई से 3π/2. तो ये मिला मुझे -π/4. ये मुझे मिला -π/4. अब इस sec x की हेल्प से मैं निकाल सकता हूं cos x की वैल्यू. तो cos x की वैल्यू हो गई 1/sec x, दैट इज -4/5. तो स्टूडेंट आपको cos मिल गया. अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर आप cos के पीछे क्यों पड़े हो जब आपको sin x/2 और cos x/2 और tan x/2 निकालना है. देखिए, cos एक ऐसा फंक्शन है जो
अपने आप को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकता है, साइन में भी और टेन में भी। अगर मेरे पास कॉस 2x है तो मैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख के कॉस एक्स निकाल सकता हूं, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख के साइन एक्स निकाल सकता हूं, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख के टेन एक्स निकाल सकता हूं। तो इस तरीके से मैंने कॉस एक्स निकाल लिया। अब मैं इस कॉस एक्स का यूज करूंगा और इसको यूज करके मैं साइन एक्स बाई टू निकालूंगा। कैसे? देखिए बच्चों, कॉस एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जितना यहाँ पे एंगल होता है उसका हाफ आता है, एक्स बाई टू इक्वल टू -4/5। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, वेट कीजिए। इसको हम रफ करेंगे। चलिए, देखिए बच्चों, हमें मिला हमें यहां से मिला कॉस एक्स की वैल्यू हमें मिल गई -4/5। जब आप कॉस 2x अप्लाई करते हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है, मतलब 2x का हाफ हो गया। यहाँ पे जब cos x को खोलोगे तो x का हाफ हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू -4/5। So this will be -2 sine square x by 2, that is -4/5 minus 1. So we are getting here -9/5. So minus से minus cancel out. So here is 9/10. So student, sine square is 9/10. So sin x value either positive or negative. So here is plus minus under root 9/10. But student, x by 2 lie in the second quadrant, so it should be positive. ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन की जो हम वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। तो √9 की वैल्यू होती है 3, और ये हो गया √10। तो बच्चों ये आपको मिल गया फर्स्ट वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलेंगे कॉस की तरफ। अब हम चलेंगे कॉस की तरफ चलेंगे अब हम। ठीक है, चलिए तो कॉस की तरफ चलते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे अब हम। तो यहाँ पे cos x को मैं लिखने वाला हूँ। cos x कितना दिया हुआ है? -4/5। ये देखिए -4/5। यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा cos की टर्म में, तो 2 cos स्क्वायर x by 2 minus 1, that is -4/5. So you can write here 2 cos square x by 2, that is 1 minus 4/5. तो ये हो जाएगा 5 minus 4/5, 1/5. So cos square x by 2 equal to 1/10. तो cos x by 2 की वैल्यू आ गई +-1/10। बट हम सिर्फ नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि x by 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम लेंगे नेगेटिव साइन क्योंकि x by 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये हो गई सेकेंड वैल्यू। दिस इज द सेकेंड वन वैल्यू। अब हम चलेंगे 10 की तरफ, 10x/2 की तरफ। तो ये लास्ट वैल्यू है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे किसी का कोई डाउट तो नहीं है। तो 10x/2 कितना होगा? 10x/2 ये हो जाएगा sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2। एंड sin x/2 की जो वैल्यू है वो है 3/√10, और इसकी वैल्यू है -1/√10। ये कट जाएगा तो ये बचेगा -3। तो नेगेटिव आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। So student, this is the solution for this question. So now, okay, now come to the next question. So next question, students, we have to prove the result, like prove that cos square x
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3, so equal to 3/2. So student, we have to prove this one. Left hand side is cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3. Student, all are cos square, and I know very well the concept of cos, like formula where cos square 2 cos square x minus 1. So यहां से cos square x की वैल्यू 1 प्लस cos 2x, और यहां से जो cos square x आएगा वो आएगा 1 प्लस cos 2x by 2. So I will use this one. So here is cos square x. So I can write this is 1 plus cos 2x by 2. And in the second form, x की जगह x plus pi by 3 है, तो everything will be same, but सिर्फ x की जगह आपको क्या लिखना है, x plus pi by 3, और सब कुछ सेम रहेगा, divide by 2. In third one सब कुछ सेम है, सिर्फ x की जगह आपको रिप्लेस करना है x minus pi by 3, divide by 2. So student, when you divide ये 1/2 plus cos by 2, जब इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो you are getting like that. यहां पर जो ये 2s को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2x plus 2 pi by 3 और डिवाइड by 2. यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और cos 2 को मल्टीप्लाई 2x minus 2 pi by 3. ओके, डिवाइड by 2. So student, 1/2, 1/2, 1/2, that is 3/2. और ये cos 2x by 2 by 2 by 2, तो 1/2 कॉमन. So rest part is cos 2x plus 2 pi by 3 cos 2x minus 2 pi by 3. अब इसके बाद आपके पास दो मेथड्स हैं. इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स हैं. पहला मेथड कि आप cos c plus cos d लगाएं, यहां पे लगाएं आप cos c plus cos d इन दोनों में, और जो भी आएगा उसको डील करें cos 2x के साथ. दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे cos a plus b खोल दें और यहाँ पर cos a plus b खोल दें और उनको म्यूचुअली सॉल्व करें. ठीक है ना, ये दो तरीके हैं. चलिए मैं cos c plus cos d लगाने जा रहा हूँ. ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ cos c plus cos d. So cos c plus cos d. So cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. So apply here, we are getting 3/2 plus 1/2. So here is cos 2x plus, यहाँ पे लगाना है, हो जाएगा 2 cos c. c मतलब 2x plus 2 pi by 3, ये c है. c plus d, d मतलब 2x minus 2 pi by 3, और इस कंप्लीट का डिवाइड 2 इंटू cos c मतलब 2x plus 2 pi by 3 माइनस d मतलब 2x, सो माइनस माइनस प्लस, दैट इज 2 pi by 3. भाई इंटरनल जो कैलकुलेशन है इतना तो आप लोग भी सोच सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग भी करेंगे. तो ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा बच्चों. तो यहाँ से एक बार एक्सक्यूज मी सर, मैं इसको यहाँ पे एक बार सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ. हाँ जी, तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों. तो सिंप्लीफाई करके ये बन रहा है cos 2x plus 2. तो ये 2 pi by 3 कैंसिल हो जाएगा 2 pi by 3 के साथ. तो यहाँ पे आया 2 cos 2x 4x and 4x by 2 2x इंटू यहाँ से 2x से 2x कैंसिल आउट, दैट इज 4 pi by 3. तो 4 pi by 3 and 4 pi by 3 by 2 2 pi by 3. सो फाइनली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 2 pi by 3 प्लस 2 pi by 3 डिवाइड by 2. तो ये आ गया 4 pi by 3 और नीचे वाला 2 भी आएगा.
ये कैंसिल आउट करेगा उसको 2 टाइम्स, तो वी आर गेटिंग 2π/3। सो यहाँ पे जो फाइनल मिलेगा वो मिलेगा 2π/3, 2π/3। अब cos 2π/3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ठीक है ना, इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ अलग से वैल्यू को, +2 cos 2x, cos 2π/3 की वैल्यू को मैं अलग से फाइंड आउट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। cos 2π/3 की वैल्यू को हम अलग से फाइंड आउट करेंगे। देखिए cos 2π/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos π - π/3, और π - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा cos π/3, और cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 1/2 होता है, तो -1/2 आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी, यहाँ पे ये cos 2π/3 है, इसकी जगह वैल्यू बनेगी -1/2। सो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 3/2 + 1/2 और cos 2x - cos 2x। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि cos 2x से cos 2x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3/2 बचेगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो सिर्फ 3/2 होगा, और वही होता है राइट हैंड साइड। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, बट ट्राई टू एडजस्ट। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज miscellaneous, okay. So question number 1, prove that 2 cos π/13 into cos 9π/13 plus cos 3π/13 plus cos 5π/13 equal to 0. So we have to prove this one. Let me start a left hand side. So left hand side is 2 cos π/13 cos 9π/13 plus cos 3π/13 plus cos 5π/13. So what is 2 cos A cos B? So 2 cos A cos B is cos A plus B, cos A plus B, and plus cos A minus B, A minus B. So this will be cos 3π/13 plus cos 5π/13. So student, after simplification, 9 plus 1 10, so 10π/13, and this will be cos -8π/13, and here is cos 3π/13 and plus cos 5π/13. So I am getting here cos 10π/13, cos of minus x. I know that cos of minus x is cos x, So यहाँ पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8π/13 ही बनेगा ये, और प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13. अब स्टूडेंट इसके बाद जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं उसको बहुत सिंसियरिटी से समझना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या अप्लाई करूंगा। देखो cos π - x या π - अल्फा, ये जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये बनता है माइनस cos अल्फा। वी ऑल नो दिस थिंग्स, ठीक है। अगर मैं cos π + अल्फा यूज करूं तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी माइनस cos अल्फा ही होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि पाई - अल्फा सेकंड में भी cos नेगेटिव है और पाई + अल्फा थर्ड में भी नेगेटिव है। यहाँ बच्चों 10π/13, 8π/13, 3π/13 और 5π/13 है। आपको क्या करना है, आपको कोई दो एंगल चेंज करने हैं, कोई भी दो एंगल, और उन दो एंगल को चेंज करके
जो रेस्ट ऑफ द दो एंगल्स हैं उनकी टर्म में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो जैसे पहले वाला जो एंगल है वो लिखा है 10 पाई अपॉन 13। तो बच्चों देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 पाई अपॉन 13। इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस ओके पाई पाई माइनस और अभी आप लोग सिर्फ देखेंगे पाई माइनस पाई बाई 30। मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ 8 में, तो 8 का मतलब होगा 5। तो स्टूडेंट 10 पाई अपॉन 13 को मैं पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 लिख सकता हूं। आप देख सकते हैं अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 13 यहाँ पे आएगा, 13 माइनस 5 कितना होता है, 13 माइनस 5 8 होता है, तो ये बनेगा 8 पाई बाई 13। तो हमें तो 10 चाहिए तो इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे 3 आएगा। ओके यहाँ पे 3 आएगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा बच्चों 3। ओके इसको भी चेंज कर देता हूँ, ये आएगा यहाँ पे 3। ओके तो पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13। अब देखिए आप जब 13 को यहाँ पे ले जाओगे तो 13 पाई माइनस 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो मेरा काम बन गया, क्यों, क्योंकि 3 पाई अपॉन 13 मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, ये बैठा हुआ है। तो मैं फर्स्ट वाले एंगल को लिख सकता हूं पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13, फर्स्ट वाले एंगल को। अब मैं सेकंड वाले एंगल को चेंज करूंगा। देखो सेकंड वाले एंगल को मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 पाई अपॉन 13, इसको मैं लिखने वाला हूं पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13। देखिए 13 माइनस 5 8 होता है, तो इस 8 पाई अपॉन 13 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13। और जो रेस्ट ऑफ द टू है उनको आप ऐसे लिखेंगे जैसे लिखे हुए हैं आपने। तो ये हो जाएंगे कॉस 3 पाई अपॉन 13 एंड प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। अब आप फर्स्ट वाले में जो लिखा हुआ है ना कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 13, तो ये कितना बन जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 13। सेकेंड वाला बन जाएगा माइनस कॉस 5 पाई बाई 13 और थर्ड फोर्थ रहेंगे एज इट इज। तो ये हो जाएगा cos 5 पाई बाई 13। सो स्टूडेंट नाउ cos 5 पाई बाई 13 is cancel out with fourth one, and first is cancel out with the third one. So finally we are getting 0 and equal to right hand side, So student